السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ جس کا نام ہے حیام، جس کے رائٹر ہیں سیدہ انم بخاری۔ چاند کی چاندنی پورے کمرے میں بکھری عجیب خوشبو بکھیرے ہوئے تھی۔ ہوا کے جوش سے لہراتے پردے جب ہولے سے ذرا اوپر کو اٹھے تو اندر کا منظر نمایاں ہوتا۔ کمرے کا فرش سیاہی بکھیرے کاغذات سے بھرا ہوا تھا۔ شاید وہ خطوط تھے سید زادہ۔ کاش کہ دنیا والے محبتوں کی عزت پامال کرنا ترک کر دیں، مگر کاش، یہ کاش تو وہ ہے جو تمام محبت پرست لوگوں کا ہے۔ ایک کاش تو فقط میرا ہے کہ کاش محبت کی امین لڑکیاں کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں، کیونکہ اگر دیکھ جائیں گی تو پھر دامن داغدار تو ہوں گے نا۔ کاش کہ مر جانے والے سچ میں مر گئے ہوتے تو عشق کی منزلوں کو جاتا ہر رستہ ایک ایسی دیوار کھڑی کر دیتا جس کو پار کرنا مر جانے کے جیسا ہوتا۔ اتنے کاش ہیں کہ آگے کا خط دھندلاہٹ سموئے ہوئے تھا۔ شاید کہ لکھنے والے کے آنسو کہے الفاظ کو دھو ڈالنا چاہتے تھے ہمیشہ کے لیے۔ حیام، حیام اٹھ جاؤ! نائلہ بخاری اپنی اکلوتی بیٹی کے کمرے کو درست کرتے ہوئے اسے اٹھانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اٹھ رہی ہوں اماں۔ وہ بھی نہ جانے کس سے نہ اٹھنے کی شرط لگا کر سوئی تھی۔ اٹھ جاؤ حیام، یونیورسٹی سے بھی چھٹی ہو گئی ہے تمہاری، یہ اٹھ رہی ہوں کے چکر میں۔ گھر کے تمام افراد اپنے اپنے کاموں کو ہو لیے، مگر ایک تم ہو، کس مٹی سے بنی ہو؟ اب ان کا پارا چڑھ چکا تھا اور یہ تو اس کے لیے معمولی بات تھی۔ اچھا میری پیاری اماں، یہ لے میں اٹھ گئی، اب تو خوش ہو جائے۔ اس نے لاڈ سے اپنی ماں کے گرد باہیں پھیلائیں، اور وہ بھی تو ماں تھی، وہ کیسے اپنی اولاد سے زیادہ دیر ناراض رہ سکتی تھی؟ اولاد بھی وہ جو اکلوتی تھی اور بڑی منتوں مرادوں سے ملی تھی۔ اس میں تو گھر کے تمام افراد کی جان بستی تھی۔ چلو جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ لگواتی ہوں۔ نہیں رہنے دیں، ناشتہ آج میں خود بناؤں گی اور آپ کو بھی کرنا پڑے گا۔ میں کر چکی ہوں حیام۔ کمرہ ایک مرتبہ پھر سے پہلی سی حالت میں واپس آ چکا تھا۔ میرے ہاتھوں سے بھی نہیں کریں گی؟ وہ معصوم صورت بنائے آنکھوں میں مغروریت سمائے سیدھا اپنی ماں کے دل میں اتر رہی تھی۔ اچھا میری جان، پہلے فریش تو ہو جاؤ۔ اور پھر وہ تیار ہونے لگی جبکہ نائلہ بیگم نے دوبارہ باورچی خانہ کا رخ کیا۔ بخاری ہاؤس میں دو خاندان آباد تھے جو کہنے کو ہی بس دو تھے، اصل میں دو جسم ایک جان تھے۔ رشتوں میں پیار اور محبت تو ایسے پائی جاتی تھی جیسے نفرتوں کا جہاں آباد ہی نہ تھا۔ ایک فیملی حسن بخاری کی تھی، ان کی بیگم ندا جو کہ ایک سلیقہ مند عورت تھی، ہر طور معیار پر کھرا اترتی تھی۔ حسن صاحب اور ندا بیگم کے تین بچے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا آذر حسن اور دوسرا بیٹا بازل حسن تھا۔ دونوں پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اب فیملی بزنس سنبھالتے تھے، جبکہ تیسرے نمبر پر مشل حسن آتی تھی۔ دوسری فیملی حسن بخاری کے چھوٹے بھائی مصطفیٰ بخاری کی تھی۔ ان کی زوجہ نائلہ بخاری کے ساتھ ان کی پسند کی شادی ہوئی اور ان کے گھر شادی کے کافی عرصے بعد حیام بخاری کی پیدائش ہوئی۔ حیام اور مشل دونوں ہم عمر تھی۔ دونوں کی دوستی کی پورے خاندان میں مثالیں دی جاتی تھی۔ حسن صاحب اور مصطفیٰ صاحب نے اپنے آپ کو بزنس سے الگ کر لیا تھا۔ آذر اور بازل دونوں مصطفیٰ صاحب کو اپنے بیٹوں جیسے عزیز تھے، اور سچ بات تو یہ تھی کہ کبھی ان دونوں نے بھی انہیں بیٹے کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ حیام آگے آگے تھی جبکہ مشل پیچھے پیچھے۔ پورے گھر میں دونوں کی آوازیں گونج رہی تھی اور وہ ہنس بالکل نہیں رہی تھی، بلکہ مشل کا غصے سے برا حال تھا۔ اسے یونیورسٹی اکیلے جانا پڑا تھا۔ اب وہ کیا کہتی کہ مجھے حیام محترمہ کے بغیر نہیں جانا، میرا دل نہیں لگتا، وہ بھی آذر حسن سے؟ نہ، اس سے تو اچھا تھا وہ خودکشی کر لیتی۔ حیام، تم مجھ سے نہیں بچو گی۔ اچھا میری ماں، میں آئندہ نہیں کروں گی ایسا، پکا وعدہ۔ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان وہ مشکل سے ہی بولی تھی۔ بھاگ بھاگ کر وہ اب تھک چکی تھی۔ ایسے کیسے معاف کر دوں؟ تمہاری وجہ سے مجھے اکیلے وہ جو بکواس لیکچر سننے پڑے، اور پھر اس دوران سونے پر جو میری عزت افزائی ہوئی، وہ بھی پوری کلاس کے سامنے۔
वो बेचारी के दुख तो सच में बहुत बड़े थे। लो, गलती तो तुम्हारी थी ना, तुम क्यों सोई? वो शायद सच में ही पिटना चाहती थी। अब कौन वो बोंगे लेक्चर सुनता, तुम होती तो हम कुछ बुराइयां ही कर लेते। हयाम जो समझी थी कि मशल का गुस्सा उड़नछू हो चुका है, मजे से जूस का गिलास टेबल पर से उठाते खड़ी थी, जो कि अचानक उस अवदात पे बिना उससे पहले पीने नसीब हुआ था। मगर अब दोबारा मशल के अचानक हमले से बुरी तरह फंस चुकी थी, क्योंकि धक्का लगा था और पूरा गिलास एन पीछे खड़े आजर हसन के नोश हो चुका था। सॉरी। आजर के तासुरात देखकर वो बौखला गई। अंधी हो गया तुम? नहीं नहीं, मैं अंधा हूं। वो शायद नहीं, यकीनन उस पर तंज कर रहा था। है? आप कब से अंधे हैं? ये बात मुझे क्यों नहीं पता? वो चलते फिरते पागलपन की पूरी दुकान थी। तुम क्या चीज हो हयाम? इससे पहले वो कुछ बोलती वो चला गया। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि दिन भर की थकान के बाद वो इस पर वक्त जाया करता। गर्मियों की रातें आहिस्ता आहिस्ता खुद में सरमा की ठंडक समोलने लगी थी, या शायद रातें हमेशा से ही ठंडी हुआ करती थी। वो रात के अंधेरे में बैठे चांद को तकने में मसरूफ थी। चांद को देखते वो हमेशा की तरह असल दुनिया से कहीं दूर अपना बसेरा किए हुए थी, कि अपने नजदीक कदमों की चाप तक ना सुन सकी। टाइम देखा है क्या हो गया है? असर की आवाज ने इसके मुश्किलें में खलल डाला। मालूम नहीं क्या कहा। शायद इसने सुनने में गलती की थी, लेकिन वो बहुत जल्द वो अपने हवासों में आ गई थी। मैंने कहा टाइम देखा है। वो हयाम को मुस्तकिल घूरियों से नवाज रहा था, और हयाम को तो जैसे जान पर बनाई थी। नहीं, हाँ नहीं, मतलब बस वो मैं तो, मेरा अंदर दम घुट रहा था। इस आदमी के सामने वो हमेशा से ही बौखला जाया करती थी। बिल्कुल ठीक कहा। लगातार पिछले 5 सालों से तुम्हारा दम ही तो घुटता है अंदर। कहो तो चांद पर घर बनवा दूं। वो अब भी अपनी घूरियां हनुस बरकरार रखे हुए था। है? सच्ची? बनवा देंगे? अजहर भाई, आप कितने अच्छे हैं। अपनी रूह में बोलती न जाने कब उसकी नजर आजर पर ठहरी, और इस अजीम इंसान के खतरनाक तेवर देखते ही जबान तालू से चिपक गई। चलती हूँ, शब बखैर। वो कहते ही दौड़ लगाई कि कहीं आजर के हथे ही न चढ़ जाए। पागल लड़की। अब आजर हसन चांद को देखने में मसरूफ हो गया था। जो ही इसे एहसास हुआ, खुद को कोसता अंदर का रुख कर गया। सुबह खैर। अगले दिन वो पूरे टाइम पर नाश्ते के लिए सबके साथ मौजूद थी। शायद मशल की नाराजगी का ही डर था। हयाम, सलाम। नायला बेगम ने इसे टोका। वालेकुम सलाम अम्मा, कहते साथ ही चेयर घसीट कर बैठ गई, और नाश्ता देकर ऐसी भूख चमकी थी जैसे कई सालों से भूखी हो, जबकि बकिया अफराद के चेहरों पर दबी दबी सी मुस्कुराहटें थी, सिवाय आजर हसन के। हयाम, सलाम। नायला बेगम ने एक बार फिर से इसे टोका। अम्मा, ये शायरी के काफिए कभी और मिला लूंगी, नाश्ता करने दे। लेकिन जैसे ही अपनी माँ के चेहरे पर नजरें पड़ी, सारी भूख अरमानों की तरह झाग बनकर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम सबको। मासूम बच्ची हो ना, भूल जाती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, अब आप खा सकती हैं। ये जवाब अब बाजिल की जानिब से आया था। बाजिल इसे हमेशा से ही मशल की तरह अपनी बहन ही समझता था। आप ही तो एक मेरे असल और सगे भाई हैं। इस घर में तो मेरा कोई अपना है ही नहीं। हाय, मैं कहाँ जाऊं? एक मरतबा फिर माँ की घूरियों को अपनी जानिब पाकर खामोश होना ही बेहतर समझा। अरे, क्यों घूर रही हो इसे? बच्ची है नायला। निदा बेगम ने प्यार से मजबूर होकर दरमियान में बोलना जरूरी समझा। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, वो यूनिवर्सिटी चलने के लिए उठ गई। ओए मशल, बस कर दे मेरी माँ, देर हो रही है। खुद तो खा लियो, मुझे तो खाने दो। हयाम कुछ उठाकर मारती, इसे डर से वो उठ चुकी थी। गर्मी जो पिछले कुछ दिनों से कहीं मुंह छुपाई बैठी थी, एक बार फिर से अपने पर फैलाए जलवागर हो चुकी थी। इस गर्मी से बेहाल वो दोनों गिरती पड़ती यूनिवर्सिटी के कैफे तक पहुंची। ये बस इन्हें ही मालूम था। कैफे में दाखिल होते ही जो पहली टेबल खाली नजर आई, हयाम उसी पर ढेर हो गई, और साथ ही मशल के लिए हुक्म भी जारी किया। मशल, मेरे लिए एक ठंडा ठार जूस। शुक्रिया। वो आंखें मुझे बहुत आराम से कह गई। क्यों भाई, मैं भी तो थक गई हूं, आखिर कोई इंसान हूं।
शायद उसने बुरा मान लिया था। अच्छा, तुम इंसान हो? वो अपनी इंसानी जुनून में वापस आ चुकी थी। हया ना करो, नाराजगी का इजहार किया गया। अच्छा ना मशल, माफ कर दो, गलती हो गई। लेकिन वो हनूज इसी हालत में बैठी रही। ना करो मशल, तुम्हें मालूम है तुम्हारे बगैर हयाम बुखारी कुछ भी नहीं। आंखों में मोती चमकने लगे। तुम रो रही हो? यार मैं मजाक कर रही थी हयाम, देखो। क्या मैं मजाक नहीं कर सकती? वो उसकी आंखों में आंसू कहाँ देख सकती थी। तुम नाराज तो नहीं हो ना? उसे कदरे हौसला हुआ। नहीं यार, इन दोनों की दोस्ती ऐसी ही थी, खट्टी मीठी सी, हर झूठ और फरेब से पाक। हंसते खेलते कब वक्त गुजर गया। वो दोनों लाइल्म थी। बाजल। यस। आरस तुम हो? आ जाओ यार, दरवाजे पर क्यों खड़े हो? इसे वही घड़ी देखकर बोल पड़ा। नहीं यार, तुम बस मेरे साथ चलो, जरूरी काम है। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ तुम्हारे ऑफिस में। वो शायद किसी जरूरी काम में मसरूफ था। यार सब काम छोड़ दो, हमें मॉल जाना है। वो क्यों? ये मत कहना कि तुम भूल गए हो, अम्मी और अब्बू की शादी की सालगिरह है वीकेंड पर। अभी तमाम तैयारियां रहती हैं, और तोहफे भी। उफ, मैं कैसे भूल गया। चलो चलें। तमाम जरूरी कामों को भाड़ में झोंक वो दोनों शॉपिंग के लिए निकल पड़े। हयाम बशर इसके कमरे में दाखिल हुई और सामने का मंजर इसके लिए कोई नया नहीं था। हयाम हमेशा की तरह अपने बिस्तर में आड़ी तेरछी सोई हुई थी। उफ हयाम, मगरिब होने को आई है, उठ जाओ, कितना सोओगी? वो साथ साथ तमाम खिड़कियां खोलती गई। उठ रही हूँ मशल, आहिस्ता बोलो यार। उसे अपनी नींद में खलल बुरा लगा था, हमेशा ही लगता था। हयाम उठ जाओ ना, सब इकट्ठे बैठे हैं नीचे, भाई लोग भी आ गए हैं। वो मिन्नतों पर और तरलों पर आ गई थी। ये लो, आ गई। कहाँ? मतलब उठ गई हूँ। चलो नीचे, मुंह हाथ तो धो लो। मुशर को शक हुआ कि वो अब भी नींद में है। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, चलो। और साथ ही मशर को लेकर कमरे से निकल पड़ी। तमाम घर के अफराद बातों में मसरूफ थे, जबकि आरस और बादल के साथ बिजनेस से मुतालिक कुछ बातचीत करने में लगा हुआ था। हयाम और मशल किसी बात पर मुस्कुराते हुए हॉल में दाखिल हुई। कितनी प्यारी मुस्कुराहट है इस पागल लड़की की। खुदा इस मुस्कुराहट को सदा सलामत रखे। न जाने कब वो दिल ही दिल में इसकी खुशियों की दुआ कर गया। लेकिन फिर चौंका। वजह उस झल्ली लड़की की आवाज थी, जो लिविंग रूम की दीवारों से टकरा कर गूंज रही थी। वो ऐसी ही तो थी, जहां जाती थी मुस्कुराहटें उसका पीछा करती थी, जहां बैठती थी वहां खुशियां अपने पंख फैलाकर फिरती थी। वो शायद बनी ही मुस्कुराने के लिए थी। इस बात का एतराफ आरस हसन ने आज खुद से किया था। वो अपनी तवज्जो वापस पजल की जानिब मरकज की। ताईजान प्लीज मान जाए ना, इस मरतबा हम लोग आप लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी ग्रैंड करेंगे प्लीज। वो निदा बेगम को कायल करने की भरपूर कोशिश करने लगी थी। उसी लम्हे आरस की नजरें बादल से जा मिली। वजह बस यही थी कि वो लड़की इन दोनों को सरप्राइज खराब कर चुकी थी। आरस हसन ने खुद को लानत मलामत करके आखिर क्यों वो अपना वक्त इस लड़की को सोचने में जाया कर रहा था। सैयदजादे, मोहब्बत का जो आखिर होता है तो क्या होता है? लोग दर दर भटकने को अफसानों में क्यों ढाल लेते हैं? पागल है ना, इस कदर कमाकल है कि मोहब्बतों को भी कभी कीमतें लगाया लगा करती हैं। तमाशे तो रोग नहीं हुआ करते, जोक तो रांझे सा होता है, ना नजर आता है और न तशहीर। जोक तो लैला सा होता है, बदसूरत, मगर उससा हसीन न कभी देखा न कभी पाया। तुम्हारी असीर सैयदजादी। दुल्हन बने मेहंदी लगे हाथों से कोई ये खत लिखे तो फिर समझो डोली नहीं, जनाजे के इंतजामात मुकम्मल हो जाते हैं। चश्मे इबरत से देख पर्दा नशी, शक्ल ताबूत की है डोली में। फंक्शन का एहतमाम बड़े जोरों शोरों से किया गया था। सब मेहमान मौजूद थे। घर के लॉन को खूब सजाया गया था। हर सू फूलों की महक गूंजी हुई थी। घर के तमाम अफराद अपनी सी तैयारी लिए शानदार लग रहे थे। सब मौजूद थे। कमी थी तो बस हया मोहतरमा की, जो न जाने किन तैयारियों में मसरूफ थी।
आरएस हसन ब्लैक फोर पीस पहने फंक्शन में मौजूद तमाम अफराद का तवज्जो मरकज था। वो वैसे भी हैंडसम था मगर आज कुछ ज्यादा ही जच रहा था। हाँ, मौजूद कोई नजर ऐसी ना थी जो उस पर ना उठी हो, मगर वो भी अपने नाम का एक था। मजाल थी जो किसी को निगाह उठाकर देखता। मशल गुड़िया किधर जा रही हो? मशल को अंदर की जानिब जाता देखकर इससे रोका। भाई, हयाम अभी तक नहीं आई, उसी को बुलाने जा रही हूँ। पता नहीं कितना तैयार होगी ये लड़की। गुस्सा चेहरे पर सजाकर देखने वाले को भला मालूम होता था। हरे रंग का घेरदार फ्रॉक पहने जिस पर कुंदन का काम हुआ था, दुपट्टा फैलाए हुए इसका एक किनारा सर पर टिका था। वो अपने भाई को जान से प्यारी लग रही थी। हयाम और मशल को हर किस्म की आज़ादी मुहैया थी, मगर इनके लिए मतईन करदा हदूदों से वो बखूबी वाकिफ थी। फंक्शन में बाकी तमाम खानदान वाले भी मौजूद थे, तो दुपट्टा लेना लाजिम था। आखिर को वो सैयदजादियां थी। चाहे जितना कोई इस दुनिया की चमक दमक में खो जाना चाहे, कोई ना कोई शय तो होती है जो जंजीर की सूरत अपने असल से जोड़ कर रखती है, फिर चाहे वो अच्छी लगे या ना। तुम इधर ही रहो, मैं जाता हूँ। शायद उसे भी कोई काम था जिसके लिए वो पर्दे पर से हटना चाहता था। पक्की बात है? तसल्ली करना जरूरी था। हाँ, मैं देखता हूँ, तुम इंजॉय करो। कहता हुआ अंदर की जानिब चला आया। अभी वो सीढ़ियां चढ़ने ही लगा था जब उसकी निगाह उठी और सामने का मंजर उसके लिए नया था। नहीं, शायद दिल के लिए नया था। निगाहों ने तो कई बार ये सब जांचा था, मगर आज दिल भी ठहर गया था। कायनात शायद पल दो पल के लिए सांस देना चाहती थी, मानो दुनिया रुक गई थी। मानना मुश्किल था। वजह आरज हसन था। इसके कायनात क्यों कर रुक सकती थी? स्काई ब्लू रंग का गाउन जो कि पाँव को छूता था, बिल्कुल सादा हम रंग दुपट्टा ओढ़े जो कि बस नाम का ही सर ढक रहा था। वो सीनियर में खड़ी सामने खड़े आरस हसन का दिल धड़का गई थी। गाँव के गले दामन पर नीले गुलाबों का गुलशन आबाद था जो कि बमुश्किल ही नजर आता था। वजह दुपट्टा था जिसने हयाम का चलना दोबर किया हुआ था। वो गिरने ही वाली थी जब आरस ने इसे संभाला। हयाम का माथा इसके शानों से टकराया। कानों में मौजूद बालियों ने बेचैनी से पहलू बदले और कलाइयों में भर भर के पहनी चूड़ियों में अलग जंग शुरू हो गई। वो कई मरतबा उस लड़की को देख चुका था, मगर आज दिल किसी और ही नगर चल निकला था। संभल कर, अभी गिर जाती। वो अभी इसे बाहों में घेरे आजाद कर चुका था। दिल ने इस अमल की तरदीद की, मगर क्या करता? मैं गिरने देता क्या? दिल ने अपना जवाब सुनाया। हाँ, वो बस ये दुपट्टा पाँव में आ गया था। वो इसे देख ही कब रही थी, बस दुपट्टे की रट लगा इसमें उलझी हुई थी। आरस ने उसे रोका और उसका आंचल खुले बालों पर यूं फैलाया जैसे सामने कोई दुल्हन हो और उसे ये हक हो उस दुल्हन को अपने हाथों से सजाए। एक पल्लू उसके दामन से गुजारता इसके कंधे पर ढह के जाता। मकसद शायद उसकी रखवाली था। वो सटपटाई। सामने खड़े शख्स की आंखों में कुछ अजीब था जो पहले कभी नहीं देखा था। आरज, भाई वो, शुक्रिया कहती हुई बाहर को भाग गई। ये मंजर आरस की आंखों को बुरा लगा था। वो इसे अपनी बाहों में किसी कीमती शह की माने जिंदगी भर कैद करना चाहता था। वो अपने दिल की बदलती कैफियत पर खुद हैरान था। कहाँ वो इस लड़की को एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकता था और कहाँ अब कि अलग से ख्वाहिश दिल में उजागर हुई थी। वो किस काम के लिए आया था सब भूल गया था और अब याद भी कहाँ आना था। वो बेचैन थी। वजह वो जानती थी, मगर दिल मानने से इनकारी था। आरस की खुद पर उठती निगाहों का महफूम वो समझ रही थी। वो पागल जरूर थी, मगर इतनी बेवकूफ भी नहीं कि खुद पर पड़ती नजरों को वो पढ़ ना सकती। उस शख्स ने कभी पहले तो इसे यूं ना देखा था। बेचैनी तब एक कदमों शायद उसके पहलू में आ बैठी थी। कैसी हो आयाम? अपना नाम सुनकर वो ख्यालों की दुनिया से लौटी। आह, प्रीशे, कैसी हो तुम? प्रीशा मशल की खालाजाद थी और उससे अच्छी भी लगती थी, मगर फिर भी वो इससे लिया दिया सा बर्ताव रखती थी। वजह वो हमेशा जाने से कासी रही थी। मैं ठीक हूँ। मैंने ये भी पूछा था कि कैसी हो। मुस्कुराते हुए कहा गया। वो ऐसी ही थी, कभी किसी बात का बुरा मनाए जाए होता ही नहीं था। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक मरतबा फिर खामोशी ने अपना बसेरा किया। अच्छी लग रही हो। शायद खामोशी उसे बुरी लगती थी। शुक्रिया। हयाम ने बस मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। तुम इतनी खामोश क्यों रहती हो हयाम?
क्या मेरी कोई बात बुरी लगी है? फौज दरमियान में हायल तमाम दीवारें गिराना चाहती थी। नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मुझे हरगिज कोई बात बुरी नहीं लगी। अगर तुम्हें मेरे रवैये से ऐसा कोई तासुर मिला है तो मैं माफी चाहती हूँ। फौज बोलने पर आई तो बोलती ही चली गई, जो कि वजह ऋषि की हंसी थी। बस कर दो हैं आप, मुझे कोई बात बुरी नहीं लगी। बस तुम बोलती कम हो, या शायद सिर्फ मेरे सामने ही। मिशेल के साथ खूब हंसती हो। वो एक बार फिर मुस्कुराने लगी। हाँ, उसके साथ तो खूब दोस्ती है मेरी। हम एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। फौज पहली बार इतना बोल रही थी। तो फिर मुझसे भी दोस्ती कर लो। ऋषि ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हयाम ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। वो आज हयाम को सच में अच्छी लगी थी। दोस्ती? दोनों मुस्कुराने लगी और अरज हसन के बारे में तमाम बातें भूल चुकी थी। अरे वाह भाई, यहाँ तो दोस्ताना चल रहा है। मशल ने दोनों को एक साथ देखा तो खुशगवार हैरत से पूछे बगैर नहीं रह सकी। तुम हमारी बातें सुन रही थी? नॉट फेयर। हयाम ने मुस्कुराहट दबाई, चेहरे पर नाराजगी जाहिर करने की भरपूर कोशिश की। जी बिल्कुल। और अब मैं लड़ाइयां करवाऊंगा? बाजल और आरस भी वहीं आ पहुंचे और बाजल अपनी शरारती तबीयत के बायस मैदान में उतर चुका था। बिल्कुल नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। प्रीशा भी कहाँ पीछे रहने वालों में से थी। हयाम भूल गई थी कि वहां क्या बात हो रही है या कौन बोल रहा है। वो तो बस खुद को आरस हसन की नजरों की तपिश में जलता हुआ महसूस कर रही थी। सैयदजादे, ये मोहब्बत की पहली नजर क्या होती है? मुझे तो लगता है कि सरमा की धूप सी होगी। जब सूरज की पहली किरण की मानित महबूब के दिल पर पड़ती होगी तो दिल की तमाम खिड़कियां खुद ब खुद इस रास्ते को रास्ता देने को खुल जाती होंगी। या फिर खजा पर गिरते पत्तों से जो बेजान होकर शाख से गिर पड़ते हैं मगर भले लगते हैं। ये नजर भी शायद दिल में घर कर जाती होगी। या फिर गर्मा की रातों की ठंडी जैसे गर्मी की हिद्दत को समय आहिस्ता आहिस्ता दिन ढलता है तो रातें सुकून बख्श हो जाती हैं। यूं ही वो सत निगाहों में रफ्ता रफ्ता पिघलती होंगी और अपने साथ सामने वाले को भी मोहब्बत की चिंगारियों से इश्क की लो देती होंगी। या वो नजर पहाड़ से भी तो होती होगी, पहाड़ से रंग बरंगी मोहब्बत की कोसे कजा दिल के आसमान पर सजा देती होगी। आपकी मोहब्बत भी मेरे दिल की यही इत्मीनानियत बख्शती है शहजादे। तुम्हारी असीर सैयदजादी। फंक्शन अपने इख्तिताम को कब पहुंचा किसी को खबर ना हुई। रात में निदा बेगम ने हसन साहब से बात का आगाज किया तो मौजू आरस हसन की शादी था। हसन, आपको नहीं लगता अब हमें आरस की शादी कर देनी चाहिए? माशाल्लाह, अब वो मुकम्मल तौर पर सेटल हो चुका है, अब मजीद इंतजार क्यों करना? कहती तो आप ठीक है निदा बेगम, लेकिन आप अपने बर्द खुरदार से भी तो उनकी राय लें, कहीं बाद में गुस्सा ही ना कर जाए। हसन साहब अपने बेटे की मर्जी के खिलाफ कहाँ जा सकते थे? पूछ लूंगी। मैं एक बात सोच रही थी। वो क्या? सवाल पूछा गया। लग गया तो क्यों ना बासिल के लिए भी हयाम का हाथ मांग ले। मेरी बहुत ख्वाहिश है वो मेरी बेटी बन जाए। नीला बेगम के लहजे में उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत ही थी। ख्वाहिश तो मेरी भी बहुत है, और वो मेरे किसी एक बेटे की अमानत हो जाए। जैसे आपको मुनासिब लगे कर लेते हैं। और इसके लिए कोई लड़की है आपकी नजर में? परी, मुस्कुराकर बताया गया। बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे कोई एतराज नहीं। प्रीशे रहमान निदा बेगम की बहन शमाइला की बेटी थी। शमाइला बेगम के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी प्रीशे, जिसे सब प्यार से परी कहते थे। फिर दूसरे नंबर पर साद था, जो कि आरज और बादल की तरह ही अब अपना फैमिली बिजनेस देखता था। और तीसरे नंबर पर आरजू थी, जो कि मैट्रिक की तलबा थी। शमाइला बेगम के शोहर कुछ साल पहले ही इंतकाल कर चुके थे, सो घर की तमाम जिम्मेदारियां अब साद के कंधों पर थी। अगले कितने ही दिन वो खुद को समझाता रहा, ये सब गलत है, वो भाई है, उसका बहन समझता है वो इसे। मगर दिल भी हर सवाल पर हाजिर जवाबी का मुजाहरा किए हुए था। दिल कहता था तुम भाई हो पर सगे तो नहीं हो, बहन समझते हो पर बहन है तो नहीं वो। अरज अपने जहन और दिल के दरमियान घनचक्कर बना घूमता रहा। वो खुद को ये मनाने के लिए बस जिद रहा, ऐसा नहीं हो सकता, मगर दिल भी कभी किसी की सुनता है। उसे अपनी पसंदीदा रूह मिल गई थी। वो उस नगर चल निकला था, जहां ये मंजिले तक का रास्ता दुश्वार और कठिन था, मगर क्या कर सकता था। आखिर आरज हसन ने यह बात जान ली थी कि उसे मोहब्बत नामी बला चिमट लिया है।
یہ انکشاف اس کے لیے حیرت کن ضرور تھا مگر خوشگوار بھی۔ وہ اس پاگل لڑکی کی حرکتیں یاد کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ وہ جی بھر کر حیران ہوا کہ وہ چڑ نہیں رہا تھا، اب تو بس مسکراہٹ رہ گئی تھی۔ کوئی اسے ہنستے ہوئے دیکھ لیتا تو سمجھتا وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ بیڈ پر آدھی دیر سے لیٹی وہ خلا میں گھو رہی تھی اور سوچ کے تمام زاویے عارض حسن پر ٹکے تھے۔ وہ تمام خدشات کے لیے خود کو تیار کرنا چاہتی تھی مگر بضد تھی۔ وہ یہ ماننا بھی نہیں چاہتی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اسے کون سمجھاتا کہ محبت کی دیوی جب اپنے پر پھیلاتی ہے تو ان پروں کے سائے میں آنے والے تمام ذرات بھی محبت کی گواہی لے آتے ہیں۔ تو یہ کیوں کر ممکن نہ ہو سکتا تھا؟ جیتے جاگتے انسان محبت سے منہ پھیر لیتے، مگر پھر محبت کی دیوی نے اپنا جادو پھونک ڈالا اور حیام بخاری اس کی زد میں آ گئی۔ وہ اس رات کے تمام واقعات ذہن میں دہرانے لگی اور ہر اس موقع پر مسکرا دیتی جب جب آرز نے اس پر نگاہ بھر کر دیکھا ہوتا۔ ایسے میں مشل اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بڑی بات ہے، ایسے طریقے میں پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ حیام صاحبہ سوئی ہوئی نہیں پائی گئی تھی۔ بس تو ہی حیرت کا مظاہرہ کیا گیا۔ میں سوئی ہوئی ہوں مشل، چہرہ اب بھی جھونکا تو تھا، دیکھنے کی زحمت گوارا تک نہ کی تھی۔ ہاں، اب کھلی آنکھوں میں سے بھی لوگ سویا کرتے ہیں۔ مشل بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ میری تو اب سب نیندیں ہی اڑ گئیں۔ مشل، اب مجھے کھلی آنکھوں میں ہی سونا ہوگا۔ لبوں پر مسکراہٹ نے اپنا گھر بسایا لیا۔ کیوں؟ محبت ہو گئی ہے کیا تمہیں؟ اس بات سے حیام کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرے تھے، مگر وہ کیسے اپنی محبت کی تشہیر کر دیتی؟ پاگل ہو کیا؟ اچھا بتاؤ کہ کیوں آئی تھی؟ اپنے تاثر چھپاتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی۔ میں تمہیں بلانے آئی تھی، کیا جاؤ پازل بھائی کے ساتھ آئس کریم کھانے چلتے ہیں؟ ہاں چلو پھر، کس بات کا انتظار کر رہی ہو؟ آئس کریم کے لیے تو وہ جان بھی دے سکتی تھی۔ فوراً چل دی۔ کوئی کے سچ کے ایپیسوڈ کے لیے تھے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔